आपने उनको देखा ही होगा, because I just love her. my God, she is so good, बहुत अच्छा वो करती Yes, हैं, she captures definitely. everything, मतलब मजा आता है। Yeah, I follow her very हाँ, regularly, and yeah, she is very she's inspiring. very good, she's very good. Okay. Which one thing you really want to change in this, whole influencer thing? जो ये कहते हैं इन्फ्लुएंसर है, what do you really want to change? बस क्या आप पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहेंगी? क्या आप लोगों को कहना चाहेंगी कि यार बस कर दो? कि कुछ ऐसा, आप कहीं ना कहीं वो बग Uh, करती हो चीज, तंग See, करती every industry is like evolving, right? है। So this is influencer marketing or word of mouth marketing industry is also evolving. Different हम्म kinds of platforms are हम्म coming. People are trying new stuff. हम्म तो मुझे seriously अभी for now I don't know what will be the thing and how it should change. But मुझे ये लगता है कि it's like when if you call yourself influencer, if you dare to call या yourself influencer बिल्कुल। or whoever, हम्म you need to have a complete thorough knowledge of whichever segment you are into, right? हम सिर्फ गोवा जाके ट्रैवलर नहीं बन सकते, हम सिर्फ हिमाचल हिमाचल जाके बंजारा सो एंड सो या मेजॉरिटी आवारा ऑफ सो एंड सो इंडियंस नहीं आर बन इन सकते. हिमाचल और गोवा, यही दो हैं। So no offenses meant at anybody, but ठीक है, कहीं as a hobby कहीं travel करना is a different thing. डिफरेंट। But if you are looking at inspiring somebody, if you're looking at taking it as a profession, then it is very important that जो भी आप कर रहे हो, if you are into dancing, if you are into entertaining somebody, then you should have thorough knowledge of that. ठीक है, if you are into food, then you should have the knowledge of that. Then I बिल्कुल। think you can call yourself expert or a near expert in that particular field. तो मुझे लगता है कि दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर द ब्रांड्स या जो आपके साथ काम करते हैं. बिल्कुल। फॉर दैट इट इज इम्पॉर्ट फॉर देम इट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट गो बाय नंबर्स कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं. इट हाँ। इज इम्पॉर्टेंट टू सी द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, क्या एंगेजमेंट है, किस तरह का हम्म कंटेंट लोग बनाते हैं, किस हम्म तरह के नीच को फॉलो करते हैं. हम्म सपोज so I go on a lot of tours and sometimes for the travel segment जी। also people invite people whose expertise into modeling or something like that, but they will have that kind of audience. They will not have the audience who are keen on traveling. Say, I'm just giving you an example. So it is very important for the brands also to recognize कि यार हमें अगर अपना कैंपेन करना है तो who do I want to choose, right? Who is the right fit for me? Maybe I am not a right fit for a brand who is into fashion, okay, बिल्कुल। exclusively into fashion or exclusively into makeup. तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, दे विल से कि हाँ हम ये मेकअप प्रोडक्ट भेज रहे हैं, आपको बस एक वीडियो बनानी है. देन आई से कि यार देखो, दैट इज नॉट माय एक्सपर्टीज, दैट इज नॉट माय फोटे. तो मैं अपना पेज खराब नहीं करूंगी बाय पुटिंग खिचड़ी ऑफ एवरीथिंग, राइट? बिकॉज आई वांट टू गो niche. I want people who are really interested into traveling and certain aspects of lifestyle to और follow ये me. मेरे साथ भी होता है ना, देयर आर पीपल हु जस्ट कीप मैसेजिंग मी, सर हमारा पॉडकास्ट इंटरव्यू ले लो। अब पॉडकास्ट इंटरव्यू में यार मैं कुछ भी नहीं डाल सकता, मुझे एक Exactly. एक फॉलो करना पर्टिकुलर Correct. प्रोटोकॉल। So you मुझे choose for yourself कि यार मैं ऐसे लोगों को ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल XYZ. बिल्कुल I can एक पैटर्न है मेरा कि व्हाट right. एवर आई एम डूइंग, मैं वो पैटर्न फॉलो करना चाहूंगा। मैं किसी को भी, मे बी ही इज ओवर अचीव, मे बी इज अंडर अचीव, बट मैं अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता कि मैं जस्ट किसी को भी प्लेटफॉर्म देकर, मैं मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, दे आर नाइस, बट हो सकता है वो मेरे पॉडकास्ट के साथ मैच ना करे, तो मैं That is फिर true. चांस नहीं देता। You आई see, जस्ट every creator has their own abilities, and that is बिल्कुल why they have that many followers because they are बिल्कुल special in their own way. But हर एक ब्रांड के साथ या हर एक जॉनर के साथ में भी हर कोई फिट ना करे, नहीं करता, नहीं including करता। me or including you, या anybody. एब्सोल्युटली नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ओके, वैसे क्वेश्चन ही इसमें है नहीं, बट इतना आपको मैंने आपसे बात करके मैंने इतना जाना, मतलब काफी मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि यार, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बीचर,
यूजर, मेरे लिए तो मुश्किल है हर जगह एक्सप्लोर करना। तो एक नॉर्मल व्हीलचेयर अगर चलो मैं व्हीलचेयर का ही ले लेता हूँ। फॉर मी अगर मुझे एक्सप्लोर करना है तो मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे पहले कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेस दैट आई कैन गो इफ आई गो सोलो ट्रैवल, समथिंग लाइक दैट, या मैं किसी एक बंदे So के साथ I think इंडिया में मतलब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि places or tourist places are not friendly for every tourist, right? So especially people with special needs, it is not everything is very friendly according to them, but अगर आप international जाओगे तो you will see कि there are a lot of facilities which are provided. मैं वही पूछना चाह रहा था basically. Every kind of tourist, like Singapore हो गया, so all these places are very very sensitive and they will have different segments where, और अगर हम कंपेयर करें इंडिया में तो हमारे यहाँ पे आई थिंक इतना इजी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट, सो दैट इज हाउ इट इज। अगर मेरी चेकलिस्ट में अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो दिस कंट्री आई शुड विजिट, तो सबसे पहले नाम में सिंगापुर रखूं। आई थिंक मुझे कई लोगों ने बोला, मतलब यार मैंने बहुत ज्यादा तो मतलब इट्स नॉट दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट जहां तक मैंने देखा है सिंगापुर एक छोटी सी जगह है एंड इट्स क्वाइट friendly and वहाँ के जो भी everything is like well, their infrastructure is very good, so I feel that is a nice place to be. चलो ठीक है, फिर अगर कभी मेरा लगा मौका I will definitely try to visit that place someday. I'll be there but someday. Okay. But now that you have asked me this question, I think I should do more research on it. Why not? Because ये अलग आपका segment बन सकता है इसका, Exactly. So you are giving me a new perspective, and I'm sure मैं इस पे ज़्यादा research करूँगी अभी। बहुत अच्छा है, because there are so many people, they are old age people also who want to travel, but due to some lack of knowledge, और कभी कभार होता है कि उनको नहीं पता उस जगह के बारे में, या कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जैसे नहीं जा सकते, बजट फ्रेंडली नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें, तो ऐसे आप कर सकते हैं, कैन स्टार्ट योर ओन सेगमेंट लाइक दैट, जस्ट आइडिया जब भी आगे। ओके, तो लाइक अगर नॉर्मल कोई अगर शुरुआती दौर में कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन को क्या पहले शुरुआत, मतलब व्हाट टू डू, मतलब कैसे वो शुरुआत करें ट्रैवलिंग का? कोई भी ट्रैवल अगर आप कर रहे हो, वेदर इट इज सोलो और विद फैमिली, ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विथ रिसर्च, राइट? तो आप जहाँ भी जाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि यार सारी दुनिया बाली जा रही है, सारे इन्फ्लुएंसर्स कश्मीर जा रहे हैं तो मैं भी उठ के बस चले जाऊँ, बिकॉज यू नीड टू सी कि आपके लिए फिट है कि नहीं, राइट? एक टाइम था जब आपको याद होगा, जब 2020 में जब सारे रिस्ट्रिक्शंस ओवर हो गए थे, सारी दुनिया हिमाचल जाके बैठ गई थी, या मनाली जाके बैठ गई थी पूरा, उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा जा नहीं पाएंगे, वो एक ढेर चाल बहुत बुरी होती। तो आपको अपना खुद का रिसर्च करना है सबसे पहले, एंड यू हैव टू सी कि आपके लिए वो प्लेस फिट हो रही है कि नहीं, योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत दिनों से लद्दाख जाना है, आई वांट टू सी स्पीति एंड ऑल दोस प्लेसेस, बट my son is 6 years old, so I am not too sure he can take those high elevation and the pressure and the lack of oxygen, so I'm not going, because I know कि मेरी research के हिसाब से it's not very safe right now, right? तो आपको रिसर्च करनी है कि कहाँ जाना है, मुझे किस तरह के प्लेस में रुकना है, and do I want to live in a hostel? अगर मुझे हॉस्टल में रहना है तो what are the pluses and minuses of living in a place? Am I a kind of person who can gel with other people? If I'm not, if I'm more of an introvert person, तो maybe मुझे hostel is a wrong choice for me, although it's a very cheap option, it's a very economical choice, but I may not enjoy it, right? Because there are so many people and you can have different experiences which may or may not be good, right? So you have to कि आपका चॉइस क्या है, आपके क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी। तो फॉर एनी ट्रिप आई वुड से कि रिसर्च एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आपको नॉलेज है, इफ यू नो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
then rest everything becomes easier, right? तो सबसे पहले किसी नए अगर कोई ट्रैवलर है तो सबसे पहले पॉइंट रखना चाहिए दिमाग में, रिसर्च किसी भी जगह पे जाने से पहले कि राइट कैसे जाए और क्या कितने दिन का टूर बनाया जाए, कहाँ कहाँ जाया जाए, इम्पोर्टेंट रिसर्च बहुत जरूरत है। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, who you think that you follow the most and inspire to be? ठीक है, इसी के साथ लास्ट एक और क्वेश्चन है, any message to the society? Okay, so like you said, I follow Shanaz. I really like content, not because वो हर जगह ट्रैवल करती हैं, क्योंकि हर जगह तो हर कोई ट्रैवल करता है, हर इन्फ्लुएंसर करता है। I find her very very real. Yeah, she is. She's so good. Like सारे photoshopped images हैं, आपने लंबी ड्रेस पहनी है। She's raw, she's real. She doesn't do makeup, and whatever she is. Next, she's very positive and bubbly. तो जैसे ही आप उनका कोई भी वीडियो देखते हो तो you automatically start feeling cheerful. So those are the two things that I really like. I also like this traveler called Isa Khan. I don't know you know him or not. His videos on Kashmir and mountains are really amazing. So मुझे उनका कंटेंट भी बहुत पसंद है. I watch and it's more like a cinematography. And couple of fellow bloggers are there जो बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, and they always inspire कि यार हमारी क्वालिटी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए. It's always like learning. पर उनके पास यार टीम होती है ना, उनकी पूरी टीम जाती है, ये भी तो नहीं, जैसे मैं if I go for blogger events तो I try to see कि उनका कौन सा कंटेंट है. बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरा स्पेसिफिक है स्टोरी टेलिंग, राइट? आई एम नॉट इनटू फोटोग्राफी एज सच. आई एम नॉट अ फोटोग्राफर और आई एम नॉट अ सिनेमेटोग्राफर or anything. I'm just a normal person. I try to keep it as natural as possible. I don't edit my pictures and all too much, or I don't do too much of like बहुत ही ज्यादा ड्रीमी दिखाना. अगर ड्रीमी दिख रहा है तो है ड्रीमी, नहीं दिख रहा है तो नहीं. इट इज लाइक दैट फॉर मी. बट व्हेन आई मीट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉगर्स तो वो लोग टिप्स देते हैं, इनपुट्स देते हैं. सम विल से यार अगर तुझे वीडियो बनानी है तो व्हाई डोंट यू यूज आईफोन. इफ यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स देन you know there is nothing better than Google Pixel. So you keep learning and exchanging information, and there are some people whose content I really like. They're not like very very popular, but unka jo way hai, the way they shoot, and har kisi ka ek signature style hota hai, right? Absolutely. So sometimes it's always a learning from your fellow people. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है उनसे, बहुत नॉलेज होती है लोगों को, ये कभी कभी हमारे लिए भी बहुत प्लस पॉइंट कर जाता है. ओके, तो मधु, ये मेरा अभी तक का एपिसोड था. हाउ वाज इट, कैसा लगा आपको? एंड यस, मैसेज टू सोसाइटी. Message to the society. I will just say कि do what you love and love what you do. This I keep saying it very very often. And ये बहुत important है. And maybe हर किसी को इतनी ये अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यार तुमको ऐसे बोलने के लिए इजी है, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसा ये हो रहा है वो हो रहा है. तो मुझे हमेशा यही लगता है कि यार योर लाइफ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज अ रिजल्ट ऑफ चॉइसेस दैट यू मेक, राइट? आप इफ यू हैव स्पेशल नीड्स, आपके पास चॉइस है कि विक्टिम बन के बैठ जाओ कि यार मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, और यू हैव टेकन अ चार्ज ऑफ योर लाइफ, राइट? यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव, यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज गुड. सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस इन लाइफ कि आप क्या करना चाहते हो, एंड योर होल लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो एंड उसके ऊपर से अगर आपको कुछ ऐसा करने को मिले जो आप हमेशा आप बहुत लाइक करते हो, जो उसके बारे में आप रियली पैशनेट हो, देन देयर इज नो लुकिंग बैक. तो मैं अगर 24 घंटे भी एक वीडियो एडिट करती रहती हूँ तो आई डोंट फील टायर्ड. लाइक I don't feel like कि यार मुझे नहीं करना, कितना मुश्किल काम है. I don't feel like it. मैं उसमें घुसी रहती हूँ because that is my real passion, right? So always try to follow your passion and everything else follows. अगर आप बट हाँ ये है कि you have to go through struggles, you have to face lot of challenges, lot of difficulties. Only thing is who doesn't give up gets the fruit of it. चलिए, consistency is the key. मैं यही मानता हूँ. That's absolutely. it. और absolutely.
जब लगे तक रहो। कंसिस्टेंसी नहीं आती आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, मेरा ये मानना। बिल्कुल। तो चलिए मधु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत Thank you, सीखने को मिला, Pulkit. It was a बहुत। pleasure talking to you, and I'm looking forward to connect with you again sometime. Oh, sure, sure. Why आपके not? Why not? podcast के लिए all the best. I Thank hope you you so get many, much. many, many followers. ठीक है, मेरे को लिसनर्स चाहिए होते बेसिकली। फॉलोअर तो बात की बात है, इफ दे कम Yes, देन the यू नो listeners. इट्स अ ब्लेसिंग। Sorry, हमारी नहीं, language में फॉलोअर्स भी नहीं, फॉलोअर्स भी मिल followers. जाते हैं, आते हैं, यू नो बहुत लोग होते हैं, यू नो दे गेट इंस्पायर्ड, I बट would मोर say ऑफ मोर ऑफ may you get मोर लवर, many आई वुड से regular लवर्स। listeners. I would say. मतलब मैं कहूँगा वो लवर्स, यू नो पॉडकास्ट लवर मिले मुझे, चाहे वो Absolutely. इंस्टाग्राम के थ्रू मिले, चाहे वो मुझे पॉडकास्ट के थ्रू मिले, बस मिलते गए। लेकिन आपको भी ऑल द बेस्ट टू यू, ट्रैवलिंग की, Thank ट्रैवलिंग अच्छी अच्छी जगह दिखाते जाओ यार। मैं तो बस you. मतलब मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, कोई अच्छी जगह मिले वहाँ पे मैं, यू नो कुछ अच्छा देखूँ, Yes. कुछ अच्छा लगे, ट्रीटमेंट मिले मेरी आंखों को, हाँ मजा आ गया। ओके, Thanks चलो so much. तो चलो मधुलिका जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो गाइस ये था मेरा आज का शो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे यू नो फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द बॉय ऑन बात मूवी, दैट्स माय इंस्टा आईडी। एंड आप मधु को भी फॉलो कर सकते हैं। मधु, आपका इंस्टा आईडी क्या है? Madhu on the go. मधु ऑन द गो, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ भी ट्रैवलिंग रिलेटेड, कुछ आपने क्वेश्चन पूछने हैं, शी इज ऑलवेज देयर एंड यू नो and give you some ideas about that. So yes, तो आज का मेरा यही शो है and आते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। अब शायद कंटिन्यूशन बनी रहेगी। नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा यू नो अच्छी बातें करेंगे और ज्यादा नॉलेज लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं सबसे ज्यादा यही बोलता हूँ, ध्यान रखना एंड दुआ में याद। बाय बाय, प्लीज। Thank you. Bye. ओके।